काम ये है कि जो काम अच्छा हुआ है उसको हम आगे लेके चलें ताकि really implementation of the actions that were taken under the previous regimes is continued. जो अच्छे वाले हैं because we will benefit even in a short time from this. SOEs जो कि that come under the scope of the act will not comply with public sector companies' corporate governance rules of SECP, but SECP is hand in glove in this whole framework. I must tell you that. Federal government shall establish and retain strategic SOEs completely, partially engaged in strategic functions, or essential SOEs जो जहाँ पे private sector service नहीं provide कर सकेगा वहाँ पे we will try to retain this but lift the game financially and operationally उनकी non-strategic SOEs को over the period we should phase out as I see. Obviously, as we move forward, the institutional arrangements will be more carefully laid out. Thought process is already there. We will have to have a hub of appointments and training of directors for the boards of SOEs. There will be issuance and reporting of guarantees for SOE. आपको पता है with the health of these SOEs, we have to really do the due diligence of where the guarantees are needed, because these guarantees cost us a lot and we have the limits on guarantees as you know from the IMF program. और public service obligations को हमने ठीक से measure करना है, ठीक से record करना है, and we will have public service obligation pay more analytical work done under the rubric of this act and all that. So I just wanted to share this with you. The basic instructions are no directions will be given to an SOE or a board of SOE by any ministry division to perform any PSO obligation or to bar the SOE from performing any operational function without the approval of the federal government. And obviously I've laid out the institutional mechanism. There's a lot out there. We are happy. हमारा ये website पे है policy paper. आप इसको ज़रूर study करें. And obviously Qamar Saab is available for any Q&A moving forward. And I'm here for a little while. But I do have another meeting. Unfortunately, I was available from 1 to almost 2. But I'm going to sit with you, and if there are questions. प्लीज़ ये करेंगे सवाल मैंने मुख्तसर काइंडली रखिएगा और अपना नाम बता के इंट्रोड्यूस करा दें. तो आप राइट से शुरू करते हैं. आप बताइए मेहताब हैदर साहब. मेरा नाम मेहताब है. मैं ये 200 से ज़्यादा SOEs हैं टोटल नंबर से, और आज से चंद साल पहले तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलरली एक एनुअल रिपोर्ट इसके बारे में जारी करता था. जी. ये 2020 का एक तो फिगर जो है लेटेस्ट फिगर्स क्यों नहीं अवेलेबल, उस पर कब तक काम हो जाएगा, और दूसरा ये बताएं कि ये लॉसेस में पिछले 3-4-5 साल से ये लॉसेस में, वरना पहले ओवरऑल एक एग्रीगेट प्रॉफिट होता था. तो इसमें सबसे बड़ा लॉस जो है वो पावर सेक्टर की कंपनीज का. तो इसको आप कैसे जो है वो प्राइवेटाइज करेंगे? PIA है और ये पावर सेक्टर की कंपनीज, ये कब तक आपका प्लान कब तक है, और कब तक आपने इनको जो है वो या डिस्पोज ऑफ करना है या इनको टर्न अराउंड करना है? जी, thank you for this question. I think let's take few more questions and then we come. जो आपने बताया है एक बर्डन है स्टेट गारंटीज का इन SOEs के लिए, कोई आपने कैलकुलेट किया है कि ये फॉरेन करेंसी में है क्योंकि सारा, तो कितना बर्डन कम किया जाएगा? देखें, अभी तो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनेगा तो फिर उस पर ये सारी कैलकुलेशंस होंगी. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, बट डेफिनेटली वी हैव द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द गारंटीज दैट हैव बीन इशूड. अच्छा मैडम, ये जो ये आपने
SCCP की जो रेगुलेशंस बनी थी ये 2013 में बनी, इम्प्लीमेंट नहीं हुई उस टाइम से। बट जहाँ पे इम्प्लीमेंट को करने की कोशिश की गई वहाँ पे बोर्ड्स ने जब उनके पास पावर्स आई तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से CEOs लगाए, अपनी मर्ज़ी से सैलरीज लगाई। सुई के जो MDs हैं वो 1-1 करोड़ रुपया सैलरी ले रहे हैं और सारे स्टाफ की तनख्वाहें बढ़ा दी गई। और जो बोर्ड्स हैं, अभी एक रिसेंटली एक केस आया LTTC में, बोर्ड ने ही अपने एक बंदे को MD लगा दिया LTTC में और उन्होंने वहाँ पे तनख्वाहें भी बढ़ाई और उन्होंने ठेकों में भी अपनी मनमानी शुरू कर दी। तो ये जो आप ये पावर देना चाह रही हैं इसमें मैकेनिज्म क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी कहाँ से होगी? क्योंकि जो भी आप रूल्स ये लगाते हैं प्राइवेट सेक्टर आके ज़्यादा बड़ा माफिया बन जाता है गवर्नमेंट एंटिटीज में। आप भी प्लीज़ क्वेश्चन दे दें पहले। जो आपने बात की है स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपकी कमेटी डिसाइड करेगी स्ट्रेटेजिक कौन सी SOEs है, नॉन स्ट्रेटेजिक है? दूसरा, अभी भी कई इदारे ऐसे हैं जहाँ पर सेक्रेटरीज बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और CEOs भी हैं, जिस तरह PTV कॉर्पोरेशन है, सेक्रेटरीज को वहाँ पे MD लगा दिया गया और चेयरमैन भी होंगे। और भी कई इदारे हैं जहाँ पर बर रास्त इंटरवेंशन है, सेक्रेटरीज बैठे हैं हर जगह पे, या JS बैठे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी बैठे हैं और सालों से ये प्रैक्टिस चल रही है, कोई छोड़ने को तैयार नहीं। तो ये वो एक तो स्ट्रेटेजिक नॉन स्ट्रेटेजिक कौन डिसाइड करेगा कि कौन से इदारे स्ट्रेटेजिक हैं कौन से नॉन स्ट्रेटेजिक है? क्योंकि माजी में ये हुआ है कि बाद इदारों को सिर्फ एक लाइन कह दिया था स्ट्रेटेजिक है इसलिए उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। जी हाँ, थोड़ा एक और ले लेते हैं। चलें ये 3 यहाँ से ले लेते हैं। ये बता दें फिर इम्पोर्टेंट है, फिर रह जाते हैं फिर एक नहीं रहेंगे, लिखा हुआ है। ये फरमाइएगा कि जो इन इदारों के बहुत सारे इदारे हैं जिनमें हमेशा जब उनकी रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है, प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ की एम्प्लॉयज़ यूनियन या लेबर यूनियन जो है वो बहुत बड़ा इशू है, हार्डल क्रिएट करती हैं। तो जब आप इनको रिस्ट्रक्चर करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, तो आपने ये ध्यान रखा है कि एम्प्लॉयज़ का क्या होगा अगर उनको उनको निकालना है इन इदारों से, बाद एम्प्लॉयज़ को या डिटेन करना है, उनका फ्यूचर क्या होगा? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। आप भी बता दें। शहबाज अख्तर 2 चीज़ें हैं। एक तो ये जो PIA की बनने की सूरत इशू PIA, बाकी 2 चीज़ें ऑन एंड ऑफ बाकी चल रही हैं। PIA में अब बात हो रही है उसकी डेट की रिस्ट्रक्चरिंग, उसके ऊपर आपका अपना क्या व्यू है? अगर ये करेंगे डेट की रिस्ट्रक्चरिंग तो क्या उसका स्टेटस होगा? क्योंकि विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग उन्होंने आपसे कहा कि 13 बिलियन इन बिजनेस एज यूजुअल रफली उनकी मंथली उनकी नीड है। सेकेंडली अगेन वो एक नेशनलिज्म का और एयरलाइन नेशनल फ्लैग कैरियर उसके किस्म के वो जज्बाती नारे लगवा के आपसे हमेशा पैसे ले जाते हैं। वुड यू ट्रीट द PIA एज जस्ट अ PIA, any company registered under any act of Pakistan, and you will not give money to the PIA, or again you will come under some pressure? I know you will not, but will you come under some pressure and give money to PIA which it is demanding right now? Thank you very much. Thank you जी। Okay, now let's take the questions. Let me first, since I've spoken a lot, पहले अगर आप कुछ दे दें और फिर मैं I'll address the remaining। तो एक तो ये है 2013 के जो implementation का था वो आप बता दें। You can answer any of these and then I'll amplify. तो वो मैडम ने अपनी माइक ऑन कर दीजिए। मैडम ने अपनी प्रेजेंटेशन में मेंशन किया है कि इस लॉ के आने के बाद और इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंट होने के बाद इन SOEs के ऊपर वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल इन्फोर्स नहीं होंगे। इस लॉ के तहत वो काम करेंगे और इस पॉलिसी के तहत। सो वो एक क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये ज़रूर है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो CMU है वो असिस्ट करेगा टू द कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट गवर्नमेंट और एक ओवरऑल ओवरसाइट का एक मैकेनिज्म इन प्लेस होगा जो कि माजी में नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए राइट। और दूसरा भी दे दिस वाज द स्पेसिफिक क्वेश्चन। गारंटीज का भी आप बता दें थोड़ा और। जी गारंटीज का इसमें हम ट्रांसपेरेंसी ऐड कर रहे हैं कि गारंटीज का जो डेटा है वो अवेलेबल हो और उसमें क्लैरिटी हो और वंस दिस इज इन प्लेस तो यू बी एबल टू एक्सेस दैट डेटा आल्सो। सो उसमें कोई ऐसा इबहम नहीं रहेगा। जैसे मैडम ने कहा कि डेटा इस वक्त भी मौजूद है और आपने जो कहा था कि वो सिर्फ फॉरेक्स की नहीं, फॉरेक्स की हैं वो हमारी ड्यूटी की गारंटीज भी हैं, फॉरेन एक्सचेंज में भी हैं, लेकिन ओवरऑल मैटर तो वही करता है जी नहीं दोनों ही मैटर करते हैं हमारी भी दोनों। अच्छा चलिए तो सारे क्वेश्चन मेरे लिए छोड़ दीजिए। अच्छा नहीं यू आर also part and parcel of this and you have done phenomenal work.
मेरा ये एक उसूल है कि जो काम करता है उसको लीडरशिप दी जाए. सो पहला क्वेश्चन प्राइवेटाइजेशन पे. देखिए, द डिसीजन मेकिंग ऑन प्राइवेटाइजेशन हैज़ ऑलरेडी बीन मेड. देयर इज़ अ लिस्ट of privatization that is available with the Privatization Commission, and this question ought to be directed at the Privatization Commission. अब full time minister Privatization Commission के हैं, और ये list has a political backing from the past, और उसमें काफ़ी सारी organizations हैं, और हमने जो legal mandate दिया गया था इस गवर्नमेंट को, केयर टेकर को, उसमें ये कहा गया था कि वी कुड कंटिन्यू द प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, एंड सम ऑफ दोज एलिमेंट्स आर कवर्ड अंडर एज लॉन्ग एज दीज आर ऑन गोइंग एक्टिव ऑन इन द पाइपलाइन. तो ये काम शुरू हो चुका है फ्रॉम द डे आई वॉज हैंडलिंग दैट पोर्टफोलियो. बट आपको पता होगा कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है हमेशा एक इंडिपेंडेंट मिनिस्टर के पास होता था. इट वाज नॉट विद द फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस डिवीजन, और तो मेरे जो 3 पोर्टफोलियोज हैं. तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ प्राइवेटाइजेशन कमीशन फुल टाइम मिनिस्टर. और चूँकि आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके साथ है, आप उनको भी सवाल कीजिएगा इसका. स्टेट गारंटीज़ are a reality, but there are limits on the state guarantees imposed by the IMF, and we are well within those guarantees. जो strategic versus non-strategic की decision कौन करेगा? देखिए, वैसे तो if you pick up the list, you can make up your mind in a minute what is strategic and what's non-strategic. इसके लिए कोई magic solution नहीं है, but the matter of strategic and non-strategic proposal will be developed based on sound criteria by the State-Owned Enterprise Department of the Ministry of Finance in consultation with relevant ministries. It is not a fully empowered director, but इनका काम है teamwork with the ministries, और once वो हो जाएगा then it will go to the cabinet subcommittee on SOEs. अच्छा, उसके बाद आपने ये PSQ का क्या कहा था? PSQ मैंने लिखा हुआ है, वो किसी का सवाल मैंने भूल गई हूँ. PI का मैं बात. मैडम वो था कि अभी भी कई SOEs हैं जिनके जो हेड्स हैं वो सेक्रेटरीज भी बने हुए हैं, चेयरमैन भी हैं, CEOs भी हैं. देखिए, now this will all be under review, but you need to understand when government has a shareholding or the concerned ministry is in charge of that SOE, तो in accordance with the shareholding of कुछ ऐसी ministries, कुछ ऐसी SOEs